Hi there, welcome back to my channel. My name is Roy, and in this video I am going to provide a concept of anthropological theories. But before we jump into the lesson, I want to quickly remind you to hit that subscribe button and turn on notifications. That way you will never miss any of my future tutorials and updates. Hello everyone, and welcome to today's presentation. Welcome to this presentation to the two major school of thought of field of anthropology. In the field of anthropology, we will talk to today that one is historical particularism, and another is diffusionism, and how these two approaches help anthropology to receive the answer at how a society or a culture evolved through in different space and time. So historical particularism and diffusionism are two approaches in the field of anthropology which have played a significant role in shaping the discipline in the early 20th century. दिस टू थॉट ये दोनों अप्रोचेस ने जो इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का उसको डेसिफर किया, उसको समझने में और आसानी किया कि कैसे हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो वे आउट होगा. तो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म ऑल्सो नोन एज कल्चरल इवोल्यूशनिज्म, first pioneered by the Franz Boas, a German American anthropologist. Then the two major school of thought in the field of anthropology, this historical particularism and diffusionism. So these two thoughts emerged in the late 19th century and early 20th century. Late 19th and early of 20th, ये इस एरिया में ये स्कूल ऑफ अप्रोच आया था, ये थॉट प्रोसेस आया था, स्कूल ऑफ थॉट अराइव हुआ था, and have a significant impact on the field of anthropology. In this presentation, we will be discussing the key concepts, proponents, and criticism of both school of thoughts. Okay, so let's start with historical particularism. Historical particularism was also known as cultural evolutionism, was pioneered by Franz Boas, a German American anthropologist. Boas believed that each culture is unique and must be studied in its own historical and environmental context. He also argued that against the notion of cultural hierarchy, which suggests that some cultures are more advanced than others, and instead advocated for cultural relativism. The idea that all cultures are equally valid and must be studied on their own terms. Boas emphasized that the importance of fieldwork, the collection of detailed data, and the use of scientific method to test hypotheses. तो historical particularism में हम लोग क्या देखते हैं ना, ये developed by Franz Boas, also known as the father of American anthropology. So who is the father of American anthropology? ना, Franz Boas, जो कि एक जर्मन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था. ये है फ्रांस बोआ, जो कि एक जर्मन और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था. तो बोआ का ये बिलीफ था दैट ईच कल्चर, हर एक कल्चर एक यूनिक है एंड मस्ट बी स्टडीड इन इट्स ओन हिस्टोरिकल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट. ना उसका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से किया जाएगा और उसका एनवायरमेंटल के हिसाब से किया जाएगा, ना कि हम लोग यूरोप में बैठ के स्टडी करेंगे अफ्रीका का सोसाइटी कैसा है. ये नहीं हो पाएगा. दिस इज अनएथिकल, कैन नॉट बी हैपनिंग विथ आवर जजस्टिक. इट इज कंप्लीटली बायस्ड. सो उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि अगेंस्ट द नोशन ऑफ कल्चरल हायरकी, इसमें कोई कल्चरल हायरकी नहीं होगा, ना तो कोई सुपीरियर होगा ना तो कोई इन्फीरियर होगा, which suggests that some culture are more advanced than others and instead advocated for the culture relativism. तो उन्होंने क्या बोला ना, कल्चर रिलेटिविज्म पे सवाल उठाया, कल्चर रिलेटिविज्म पे काम होना चाहिए. द आइडिया कल्चर रिलेटिविज्म, द आइडिया क्या, द आइडिया दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वली वैलिड एंड मस्ट बी स्टडीड ऑन देयर ओन टर्म्स. हर एक कल्चर का उसका इक्वली वैलिडेशन है और उसका अपना एक ओन टर्म है नॉर्म से चलाने का. वो emphasized the importance of field work, the collection of detailed data and the use of scientific method to test hypothesis. तो बोआ ने क्या किया इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क, फील्ड बेस्ड ग्राउंडेड स्टडी था, ग्राउंडेड स्टडी को इंपॉर्टेंस दिया, डिटेल्ड थिक डिस्क्रिप्शन का डिटेलिंग लिया कि हर एक डिटेल का, हर एक इंस्टीट्यूशन हो रहा है, एक मैरिज हो रहा है, एक राइजडी पैसेज हो रहा है, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, थिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एंड यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू टेस्ट हाइपोथेसिस. तो हम लोग साइंटिफिक मेथड को यूज करके उसका हाइपोथेसिस को डिटरमाइन करेंगे, ना कि हालांकि हम लोग अपना मन से सोच लेंगे कि वो उसका ये है ट्राइब है इसके लिए वो अंडर नरिश्ड है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए.
साइंटिफिक मेथड होगा, उसके हिसाब से हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। डिफ्यूशनिज्म उस हिसाब से, ऑन द अदर हैंड, द आइडिया दैट कल्चरल ट्रेड्स एंड प्रैक्टिसेस स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर थ्रू डायरेक्ट एंड और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डिफ्यूजनिज्म उस हाथ से क्या करता है कि ना कल्चरल ट्रेड्स एंड प्रैक्टिसेस वो स्प्रेड करता है फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हालांकि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है ए और उसके पास में एक सोसाइटी है जिसका नाम है बी, तो इसका कुछ कुछ इफेक्ट ए से बी में जाएगा, बी से कुछ कुछ इफेक्ट बी से ए में जाएगा, जो कि ये डिफ्यूजन हो रहा है, जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एक्लचरेशन हो रहा है, एब्जॉर्बेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, इसके हिसाब से ट्रांसफ्यूशन होगा। ठीक है, दिस अप्रोच वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट सच एज E.B. टाइलर एंड जेम्स फ्रेजर, who believed that all culture evolved along a single path from primitive to advanced। हम लोग पिछले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि E.B. टाइलर और जेम्स फ्रेजर का आइडिया कैसा था ना, कल्चर इवोल्यूशन हुआ यूनिलिनियर में, एक ही पैटर्न में, A से B गया है, B से C गया है ना, पहले ट्राइब था, फिर चिपडम हुआ, फिर हम लोग क्या सिविलाइजेशन आया, ऐसे करके ग्रेजुअली हुआ है। लेकिन हम लोग को पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, हर एक कल्चर का अपना अपना टाइम एंड सेटअप है, उसके हिसाब से डेवलप्ड हुआ है। दिस अप्रोच वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट E.B. टाइलर एंड फ्रेजर। ठीक है, एंड दैट सिमिलरिटीज बिटवीन कल्चर्स आर ड्यू टू बोरोइंग और डिफ्यूजन। जो सिमिलर है, जैसे कि ए से बी में ट्रांसफर हुआ एक सोसाइटी, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज रह गया, ये सिमिलरिटी डिफ्यूजन से हुआ है उनका बिलीफ में, अकॉर्डिंग टू E.B. टाइलर एंड जेम्स फ्रेजर। ठीक है, लेटर जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सच एज फ्रिट्ज ग्रैबनर, विलियम स्मिथ एंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्राफ्टन एलियट स्मिथ एक्सपेंडेड ऑन द आइडिया ऑफ डिफ्यूजनिज्म, आर्ग्यूइंग दैट कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड थ्रू माइग्रेशन, ट्रेड एंड कॉन्क्वेस्ट। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं ना, जो जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, फ्रिट्ज ग्रैबनर आते हैं, विलियम स्मिथ आते हैं, फ्रिट्ज ग्रैबनर है, हाँ फ्रिट्ज ग्रैबनर, ये सब जर्मन स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस है। ये हम लोग डिफ्यूजन में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो हु बिलीव दैट कल्चर इवॉल्व अलोंग ए सिंगल पाथ। ठीक है, फ्रिट्ज ग्रैबनर क्या बोला उन्होंने कि एक्सप्लेन द आइडिया फॉर डिफ्यूजन, आर्गुइंग दैट कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड थ्रू माइग्रेशन। किस किस से डिफ्यूजनिज्म हो सकता है ना, हो सकता है माइग्रेशन से, फर्स्ट स्टेप होगा माइग्रेशन, फिर क्या होगा, ट्रेड होगा, ट्रेड से डिफ्यूजन हो सकता है, और होता है कॉन्क्वेस्ट से, मतलब इन्वेडर्स कॉन्क्वेस्ट करते हैं, लूट लेते हैं, देश के देश लूट लेते हैं। जैसे इंडिया में आया बहुत, अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होकर मुगल्स आए, तो ये क्या किए, कॉन्करर थे, ये इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स आके कॉन्करर के, और इनका जो कल्चर था, उनका जो आर्किटेक्चर और आर्ट और कल्चर था, वो क्या हुआ ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पार्ट उसमें एब्जॉर्ब हो गया, जो प्रोसेस डिफ्यूजन बताता है। ये कौन बताया था ना, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट का, जिसमें फ्रिट्ज ग्रैबनर है। ठीक है, यहां पे और एक आता है जो कि है हम लोग का ये उसका नाम है हाँ, यहाँ पे लियो फ्रोविनस का नाम आता है, लियो देखेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो फ्रोविनस, जिसने कल्चर क्रूज का नाम दिया था, कल्चर क्रीज। कल्चर क्रीज जो है कल्चर, जर्मन में लिखा गया है, जो कि कल्चर सर्कल ना, कुछ पॉकेट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। सो ये कल्चर एक डेफिनेट सर्कल्स में आते हैं, कुछ डिफिनेट बाउंड्रीज में आते हैं, बोलने मतलब एक कल्चर एक बाउंड्रीज में लिमिट होता है। जैसे एक कल्चर
बी कल्चर एंड सी कल्चर, तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं बट मिले हुए नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग डेफिनेट इंडिस्टिंक्ट कल्चर है, जिसका थ्योरी था लियो फ्रॉबिनस का कल्चर क्रीज का, कल्चर सर्कल। तो हम लोग देखें कैसे कैसे होता है ना, माइग्रेशन से होता है, ट्रेड से होता है, कॉन्क्वेस्ट से होता है, ठीक है। फिर ओवर टाइम हिस्टोरिकल while historical particularism and diffusionism had their differences, they both contributed to the development of anthropology as a scientific discipline. Historical particularism emphasized the importance of fieldwork and the study of culture in its historical and environmental context, while diffusionism highlighted the role of contact and interactions between cultures in shaping their development. ठीक है। यहाँ पे हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म और डिफ्यूशनिज्म का बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म और डिफ्यूशनिज्म का बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है, बट दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है कि एंथ्रोपोलॉजी को और ज़्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए। उसका जो मेथडोलॉजी है, उसका जो अप्रोच है, वो साइंटिफिक हो। साइंटिफिक होने का मतलब क्या है ना, मोर एम्पेरिकल होगा। मोर एम्पेरिकल मतलब क्या है ना, और ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस होने का मतलब क्या है ना, जेनरलाइज्ड होगा, उसमें लेस बायसनेस होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क। तो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस दिया है ना, फील्ड वर्क पे, ग्राउंड बेस पे, कहां पे खड़ा है, हाँ, उसका फर्स्ट स्टैंड पॉइंट पे दिया है, फील्ड वर्क पे। एंड द स्टडी ऑफ कल्चर इन इट्स ओन हिस्टोरिकल एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। फील्ड वर्क उससे क्या पता करते हैं ना, उस कॉन्टेक्स्ट का, वो सोसाइटी का, कल्चर का जो हिस्टोरिकल और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है, एनवायरमेंटल का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो उस टाइम एंड स्पेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम देखेंगे। और डिफ्यूजनिज्म उसमें क्या कर रहा है ना, डिफ्यूजनिज्म देख रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है कि हर एक फैक्टर्स में, हाँ, बिटवीन द कल्चरल डिफ्यूजन हाईलाइट द रोल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन ना, कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस किस में ना, ए ग्रुप से बी ग्रुप में क्या क्या इन्फ्यूज हुआ, क्या क्या गया, ये डिफ्यूजन का देखने का काम है ना। रूल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शंस, ठीक है, बिटवीन कल्चर्स इन शेपिंग देयर डेवलपमेंट, दोनों को डेवलपमेंट में हेल्प होगा। Over time, historical particularism became the dominant approach in anthropology, and its emphasis on the fieldwork and cultural relativism continue to shape the discipline today. Boa students such as Margaret Mead and Ruth Benedict further developed this approach, conducting ethnographic research that is highlighted the diversity of human cultures and challenged stereotypes, the assumption about non-Western societies. तो क्या देखते हैं कि हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म धीरे धीरे डोमिनेंट अप्रोच शो करने लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सुपेरियर नहीं था, और जो इंपॉर्टेंट है वो यूनिलिनियर नहीं था, मल्टीफेसेटेड था। मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम लोग जनरलाइज्ड सबको लेके विकास की बात सोचेंगे, ठीक है, जो कि यूनिलिनियर नहीं हो सकता, एक के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म डोमिनेंट फेज में आ गया। वहां पे किसमें उसका बेसिस हुआ ना, साइंटिफिकली और कैसे हुआ ना, फील्ड वर्क हुआ। फील्ड वर्क में कौन कौन हेल्प किया ना, मार्गरेट मीड में हेल्प किया उसको शेप देने में, रूथ बेनेडिक्ट में हेल्प किया डिफरेंट स्टडीज में एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, ठीक है, जो कि चैलेंज किया द स्टीरियोटाइप्स एंड द प्रीजुडाइज एंड एजम्पशन अबाउट नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज according to the western society. The European societies have their own judgment of the non-western society, that they are savage, they are not advanced, technologically advanced. So this to get rid of these judgments, prejudgment, historical particularism came into action. Diffusionism, on the other hand, fell out of favor as anthropologists began to question its assumption and methods. ठीक है, critics argued that it relied too heavily on unproven assumption about the spread of culture
and failed to take into account the complex social and historical context in which cultural practices developed. Later, anthropologists such as Marvin Harris, Roy D. Rappaport developed new theories that emphasized the role of ecology, economics, and other factors in shaping cultural development. तो कल्चरल डेवलपमेंट सिर्फ एक फॉलो अप में नहीं हो सकता. एलियट स्मिथ ने, विलियम स्किमिड ने, डब्ल्यू.एच. रिवर्ड ने क्या किया ना, एक पैन इजिप्शियन थ्योरी लगाया ना, एक पैन इजिप्शियन थ्योरी लगाया. पैन इजिप्शियन थ्योरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. पैन इजिप्शियन थ्योरी, पैन इजिप्शियन थ्योरी में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन है, उसका मदर सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उससे सब सिविलाइजेशन आ रहा है. लेकिन ऐसा तो नहीं है ना. हम लोग बहुत सारे सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया, सुमेरियंस हो गया, इजिप्शियन हो गया. दिस आर ऑल ओल्ड सिविलाइजेशन. तो इसका मतलब क्या वहां से आया? नहीं, अलग अलग बर्डिंग पॉइंट पे स्पोराडिकली दे अलग अलग से डेवलपमेंट हुआ है, मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग जगह पे. हाँ, कुछ सिमिलरिटीज रह सकता है. हो सकता है वो सिमिलरिटी ट्रेड्स के लिए हो सकता है वो सिमिलरिटी माइग्रेशन के लिए हो सकता है वो कोई कॉन्करर रहा था उसने किया है. तो ये सब डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचेस है, ठीक है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी को लेटर पार्ट में साइंटिफिक बनाया है, ठीक है. बाद में मार्विन हैरिस ने इकोलॉजिकल में काम किया, इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस पे काम किया. रॉय डी रैपापोर्ट में काम किया. रॉय डी रैपापोर्ट का एक इन्फ्लुएंशियल मोनोग्राफ है कि पिक्स फॉर द एंसेस्टर, उसमें उसका इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन का जो इंटरेक्शंस है उसको इकोनॉमिकल शेप कैसे कर रहा है, उसको शेपिंग कल्चर डेवलपमेंट, तो उसको शो किया है. Today, anthropology is a diverse and multifaceted discipline that incorporates a range of theoretical approach and research methods. Some anthropologists continue to build on the insight of historical particularism and diffusionism, while others have developed new approaches that draw on fields such as linguistic archaeology and evolutionary biology. Regardless of their approach, anthropologists share a commitment to understand human cultural diversity and complex social, historical, environmental factors. तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कैसा ये सब्जेक्ट डेवलप किया है और कैसे कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द एम्पिरिकल एविडेंसेस एंड मेकिंग एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट. तो हम लोग अभी और एक बार की नोट्स की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, छोटा करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है, की कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है. हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, ये फ्रांस बोआ का एक्टिविटी जब वो ये पिट रिवर म्यूजियम में थे. तो की कॉन्सेप्ट क्या है ना, ईच कल्चर इज यूनिक and should be studied in its specific historical and environmental context. Cultural traits are not static, they are dynamic and constantly changing and evolving. तो क्या है, ये बोल रहा है कि एक कल्चर यूनिक है उसका टर्म्स एंड नॉर्म्स में, जो कि उसी का स्पेसिफिक, उसका हिस्टोरिकल और उसका एनवायरमेंटल को कंसीडर करके स्टडी करना होगा. कल्चरल ट्रेट्स आर नॉट स्टैटिक, ये कोई स्टैग्नेंट नहीं है. दिस इज लाइक ए रिवर एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. जैसे कि एक रिवर, एक नदी आपका रास्ता चेंज करता है, कभी भी आपका टेरेन चेंज करता है, वैसे सेम एक कल्चरल ट्रेट्स है जो कि टाइम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से ये डाइवर्ट होता है, चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस. कल्चरल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और बाई डिफ्यूजन और माइग्रेशन फ्रॉम अदर कल्चर्स को कैन नॉट हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ डिफ्यूजन और माइग्रेशन के लिए पूरा एक नया कल्चर इवॉल्व हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म हम लोग का प्रोपोनेंट्स कौन है ना, फ्रांस बोआ है जो उसका मेजर प्रोपोनेंट है, रूथ बेनेडिक्ट है और मार्गरेट मीड है, ठीक है. ये है रूथ बेनेडिक्ट और ये है हमारा मार्गरेट मीड. मार्गरेट मीड का कमिंग ऑफ एज इन सामोआ एंड रूथ बेनेडिक्ट का हमारा है कीप द पाउडर ड्राई. तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये सब देख लीजिएगा, जो कि फ्रांस बोआ, रूथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड है. अब हम चलते हैं इसका क्रिटिसिज्म पे. हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का क्रिटिसिज्म क्या आया ना, critics argue that historical particularism ignored the similarities between cultures and placed too much emphasis on uniqueness. तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म इग्नोर द सिमिलरिटीज बिटवीन द कल्चर, वो मिस कर गए क्योंकि उन्होंने ज्यादातर देखा जो यूनिकनेस है, जो यूनिक नहीं है उस कल्चर को शुरू करते हुए देखा कि ज्यादातर उसमें जोड़ दिया गया. Some criticize Boa for being too focused on studying
नॉन वेस्टर्न कल्चर्स rather than exploring cultures of यूनाइटेड स्टेट्स। उसने कि ये बहुत ही ये भी मैं कहूँगा ये पॉइंट भी बहुत ये है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुआ का क्रिटिसाइज किया गया है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटी को ज़्यादा उसने वैल्यू दिया और ज़्यादा स्टडी किया, हालांकि कल्चर एक्सप्लोरिंग द कल्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि वो कैसा हुआ, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट पहले अलग था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे कल्चरली डेवलप किया, तो उस नोशन को एड्रेस करते हुए ये क्रिटिसाइजेशन दिया गया है। ना आते हैं हम डिफ्यूजनिज्म में। डिफ्यूजनिज्म में क्या देखते हैं ना, इस स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ डिफ्यूजन माइग्रेशन इन द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स। Diffusionists believe that cultural traits are spread through contact between cultures and that is this contact can occur through migration or trade. They argue that similarities between cultures can be explained by the diffusion of cultural traits from one culture to another. जैसे कि यहाँ पे हम हड़प्पा का बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुमेरियन द उरुक सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं और सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हो सकता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन सबसे एंशिएंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इजिप्ट से ही हड़प्पा आया है, इजिप्ट से ही सुमेरियंस आया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब अलग अलग रीजियंस पे अलग अलग डेवलपमेंटल पैरामीटर से गया गुजरा है। किसी का लेट है, किसी का एडवांस्ड है, उसका अपना टाइम एंड स्पेस के हिसाब से, उसका अपना एनवायरमेंटल के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग डिफ्यूजन में कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कल्चरल ट्रेड्स आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट बिटवीन कल्चर्स, डिफ्यूजन का बात है। सिमिलरिटीज बिटवीन कल्चर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स। डिफ्यूज हो जाता है कल्चरल ट्रेड्स। एक मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ये मैरिज कोई डोमिनेंट सेक्टर आने के बाद ये डिफ्यूज हो जाएगा। इस डिफ्यूजन को हम लोग सिमिलरिटीज के हिसाब से देखते हैं कि बिटवीन द सिमिलरिटी डिफ्यूज हो गया। माइग्रेशन एंड ट्रेड्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स, ये डिफ्यूजन का बात है। नेक्स्ट आते हैं की प्रोपोनेंट्स कौन है ना, विलियम ग्रामन सुमनर है, विलियम स्किमिड है, ग्राफ्टन इलियट स्मिथ है, फ्रांस बुआ है, जो अर्ली करियर में डिफ्यूजनिस्ट थे लेकिन बाद में वो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म बन गए, कल्चरल रिलेटिविज्म का प्रोपोनेंट बन गए। लॉ ऑफ रॉबिनस कल्चर क्रूज, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए ये इस पिक्चर से समझ में आएगा कि ये 7 कल्चरल सर्कल से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रॉबिनस, ये 7 कल्चर से, ये 7 मेजर कल्चरल सर्कल से, कल्चर क्रीज से ये पूरा कल्चर स्प्रेड हुआ है। ये जो 7 कल्चरल क्रीज है, ये 7 कल्चरल सर्कल से ये 7 कल्चरल डिफ्यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या क्या है ना। आर्ग्यूड दैट critics argued that diffusionism ignored the role of environment and historical factors in the development of cultures ना। क्रिटिक ये डिफ्यूजन इग्नोर, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि डिफ्यूजन स्कूल ऑफ थॉट ने रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ ए कल्चर। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट डिफ्यूजनिज्म इग्नोर द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर। थोड़ा रिपीट हो गया ये वाला। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर 1 के समय डिफ्यूजनिज्म वाज आल्सो बीइंग चैलेंज्ड बाय द न्यूली इमर्जिंग फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट led by Bronslow Malinowski and A. Radcliffe Brown. They argued that even if one could produce evidence of imported aspects of culture in a society, the original culture trait might be so changed that it served a completely different function than that for the society from which it diffused. देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया बाय द फंक्शनलिस्ट अप्रोच ने क्या बोला कि एक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, चाहे वो कोई नॉर्म्स है, चाहे वो कोई बिलीफ है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर कस्टम है, ये 4-5 एलिमेंट अगर दूसरा कोई कल्चर में स्प्रेड होता है, उसका यही मतलब है कि उसका जो ओरिजिनल कल्चर बेस है, जिस कल्चर में वो पला बड़ा है, जिस कल्चर में उसका बेस्ड है, वो उस कल्चर में पूरा एक्लचरेट हो जाता है, पूरा डिफ्यूज हो जाता है और वो वाइडली एक्सेप्टेड हो जाता है और उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है जहां पे उसका ओरिजिनेटेड है। फंक्शन में चेंज आ जाता है यहाँ पे, तभी जाके और एक सोसाइटी को ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये हेल्प कहाँ पे करता है ना, हम लोग का कल्चरल मॉडर्नाइजेशन पे करता है, हम लोग का पैटर्न्स ऑफ ड्रेसिंग पैटर्न्स पे करते हैं, फिर हम लोग का वेस्टर्न फूड पैटर्न या तो द एडप्टेशन ऑफ फूड उसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
बोलता है जेम्स एम ब्लॉट बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम डिफ्यूशनिज्म इज रेसिस्ट. एग्जैक्टली, extreme diffusionism is racist because he unilinear है, already biased है. However, he did believe that as a process diffusionism was important. He criticized extreme diffusionism because he believed that it contributed to the prevalent belief that European style societies were more innovative than non-European societies and that the proper form of development would progress according to the whether or not these cultural traits had diffused from European societies. तो जेम्स एम ब्लॉट का 1993 में बिलीव किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम डिफ्यूशनिज्म. ये एक्सट्रीम डिफ्यूशनिज्म की बात करते हैं. जो एक्सट्रीम डिफ्यूशनिज्म है वो कंप्लीटली रेसिस्ट है, वो कंप्लीटली बायस्ड है, कंप्लीटली जस्टिक्स है कि एक कल्चर डोमिनेंट कल्चर से, मतलब अगर एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटी किसी कल्चर को एडॉप्ट करता है, इसका मतलब यही है कि वो कल्चर डिप्राइव्ड था और सुपेरियर कल्चर से उसने वो एडॉप्ट किया है, जो कि यूरोपियंस है. ठीक है, कटिंग ए केक इन बर्थडे सेलिब्रेशन, बट इट इज हाईली रेसिस्ट. यूरोपियन स्टाइल सोसाइटीज आर मोर इनोवेटिव, ये उनका बिलीव है कि मोर इनोवेटिव है देन नॉन यूरोपियन. द नॉन यूरोपियन टेक्नोलॉजीज आर नॉट रिलेवेंट कंपेयरिंग टू द यूरोपियन टेक्नोलॉजीज. whether this culture traits diffuse from, और इनका जज भी वैसे किया जाएगा कि ये यूरोपियन सोसाइटी से एक्सेप्टेड हुआ है और नहीं. कंक्लूजन पे जाते हैं कि ना हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म एंड डिफ्यूशनिज्म हैव हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. Historical particularism emphasized the importance of studying cultures in their specific historical and environmental context, while diffusionism emphasized the role of diffusion and migration in the spread of cultural traits. Both schools of thought have been criticized for ignoring certain aspects of culture, but they have also contributed to our understanding of cultural development and evolution. ठीक है, कितना भी एक स्कूल ऑफ थॉट और कोई भी अप्रोच पुराना हो जाए, रिडंडेंट हो जाए, लेकिन तब भी उसने वो प्लेटफॉर्म दिया था नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को प्रोग्रेस करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए. इसलिए ये हम लोग के फंडामेंटल नॉलेज के लिए, फंडामेंटल थ्योरी नॉलेज बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंस है. और हम लोग कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, कुछ कंट्रीब्यूटर्स के माध्यम से कौन कौन कंट्रीब्यूट किया था उसके हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं. फ्रांस बोआ कहाँ जन्म है ना, जर्मनी में जन्म है. वो एक फिजिक्स के स्टूडेंट थे जो कि बाद में बफिन आइलैंड में काम किए हैं. ठीक है, उनका फर्स्ट प्रोपोनेंट था क्या ना, ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म का, रोमांटिक आउटसाइडर्स उनका प्रोपोनेंट था. अच्छा ठीक है, फिर लियो फ्रोबिनस का बात किए. लियो फ्रोबिनस कौन थे ना, उनका पास ओरिजिनेट था कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर क्रीज. कल्चर क्रीज की बात करते हैं हम लोग, कल्चर सर्कल की बात करते हैं, वो लियो फ्रोबिनस का है. ठीक है, इसमें क्या है ना, पाइड्यूमोआ है, सोल और कल्चर, पाइड्यूमोआ द कल्चर. ठीक है, फिर फ्रिट्ज ग्राबनर है, जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो डिफ्यूशनिस्ट थिंकर, सपोर्टेड द स्कूल ऑफ कल्चर सर्कल, जो लियो फ्रोबिनस के साथ एक साथ थे, कल्चर क्रीज के साथ मेंटेन करने के लिए उसका जो थ्योरी है उसको सपोर्ट किया है. एंड फ्रेडरिक डेट्जेल है, फ्रेडरिक डेट्जेल ने भी उसको लियो फ्रोबिनस पीपल ऑफ लियो फ्रोबिनस फ्रेडरिक डेट्जेल के स्टूडेंट है कल्चरल सर्कल के लिए. ठीक है, कल्चर सर्कल एसी हेड ऑन है. थॉर हायड्रल है, थॉर हायड्रल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्टी की एक्सपेडिशन किया था. कॉन्टी की एक्सपेडिशन आप देख सकते हैं, यूट्यूब में है कॉन्टी की एक्सपेडिशन. थॉर हायड्रल का काफ़ी एडवेंचरस है, और कैसे उन्होंने ये थ्योरी को प्रोपोनेंट किया कि हाउ व्हाइट गॉड्स ट्रांसफर्ड इनटू द ओशियनियस लाइक द मेलानेशियस. हाँ, देन एल्फ्रेड क्रोबर है, क्रोबर का कॉन्सेप्ट कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट था, कम्युनिटी प्रोडक्ट, क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी प्रोडक्ट ऑफ नियरली द होल स्कूल ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनका ये था. देन फ्रेडरिक डेट्जेल है, जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, क्राइटेरिया विच द नॉन फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट कुड बी कंपेयर. नॉन फंक्शनल ऑब्जेक्ट से जो कैरेक्टरिस्टिक्स का उसको हम कंपेयर करते हैं. डब्ल्यू.एच. रिवर्ड है, डब्ल्यू.एच. रिवर्ड जो आपका फर्स्ट जो आपका कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन हुआ था उसमें साथ दिया था, उसमें थे एसी एडन के साथ एज ए साइकोलॉजिस्ट, जो कि जीनियोलॉजी जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं वो फर्स्ट यूज किया था डब्ल्यू.एच. रिवर्ड ने. ठीक है, टोरस स्टेट एक्सपेडिशन, सॉरी टोरस स्टेट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टोरस स्टेट एक्सपेडिशन हुआ था, उसमें टोरस स्टेट में 1898. यस,
देन विलियम स्किमिथ है। विलियम स्किमिथ के बात हम लोग कर चुके हैं, जो कि एक कैथोलिक प्रिस्ट से और यूनिलिनियर कल्चर के इसमें बिलीव करते थे, जो कि प्रीमिटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में बिलीव करते थे। ठीक है, स्टेजेस आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम हंटर गैदरर टू हॉर्टिकल्चरिस्ट टू पेस्टोरलिस्ट एंड एंडिंग विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड सिविलाइजेशन, जो कि है मर्विन हैलिस का थ्योरी। देन आता है एलियट स्मिथ का, ब्रिटिश एनाटोमिस्ट थे और कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आर्गिंग दैट इजिप्ट वाज द सोर्स ऑफ हायर कल्चर, जिन्होंने बताया था, पैन इजिप्शियन थ्योरी का प्रोपोनेंट थे। एंड स्मिथ एंड डब्ल्यू जी पेरी ऑल्सो, डब्ल्यू जे रिवर का स्टूडेंट है, जो कि सेम पैन इजिप्टोलॉजी के साथ सपोर्ट करता है। ईवी टाइलर जी यूनिलिनियर सोसाइटी में बिलीव करते थे कि ना यूनिलिनियर डेवलपमेंट हुआ है, सब्जेरी बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, और उनका कुछ जो सिमिलरिटीज है वो डिफ्यूजन के माध्यम से ट्रांसफर हुआ है। देन क्लार्क विजलर, क्लार्क विजलर का क्या बोलते हैं ना, लैंडमार्क ट्रीटमेंट द कल्चर एरिया और द कल्चर सेंटर प्रोपोजिंग अ लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कल्चर सेंटर से लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है, ये उनका कुछ थ्योरी है। तो यही हमारा मेजर आज का डिस्कशन है, जो कि हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म और डिफ्यूजनिज्म पे था। कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो आप कर सकते हैं और कमेंट पे, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। थैंक यू, और इसी तरह से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो को आप देखते रहिए। धन्यवाद। And that's it for this video. I hope you find it helpful and informative. If you have any questions or comments, please feel free to leave them down below in the comment sections, and don't forget to give this video a thumbs up if you find it useful. Thanks for watching, and I will see you in the next video.